Hello, my lovely students. Welcome to the part 4 of chapter number 1, Reproduction in Organisms. In previous lecture, we have discussed about the first event of the sexual reproduction, pre-fertilization, and today we will discuss about the second and third event, fertilization and post-fertilization. So let's see fertilization. It is the most vital event in the sexual reproduction. In this process, the fusion of the gametes is occur, and this process is called as syngamy. So this results into the formation of the zygote. Now what is the zygote? So zygote is a diploid cell which is formed due to the fusion of the male and female gamete. When a sperm cell is fused with the egg cell, it will form a one cell, and that cell is known as a zygote. Now parthenogenesis, it is the process in the female gamete undergoes into the development to form a new organisms without fertilization. That means here the male gamete do not take a part into this process. Only female gamete is responsible for the formation of new organism. For example, rotifers, honeybees, some lizards and turkey birds. Okay. The seedless fruits are the results of this parthenogenesis process, and that's why these fruits are called parthenocarpic fruits. Here is the two type of the fertilization: external fertilization and internal fertilization. External fertilization occurs outside of the body, while internal fertilization occurs inside of the body. In external fertilization, syngamy occurs in the external medium. For example, most of the time the medium is the water, that is the outside of the body of the organisms. Let's take an example of the frog. Male frog releases the sperms inside the water, and the female frog releases the eggs inside the water. And here the syngamy occurs inside the water, and zygotes are formed inside the water. So here we can say that the surrounding medium, it enhances the syngamy. The major disadvantage of this external fertilization is the offsprings are extremely vulnerable to the predators, and so there is a threatening of their survival up to the adulthood. And this is the reason why the large number of the sperm cells and the large number of the egg cells are released into the water, because सारे organisms सर्वाइव करके एडल्टहुड तक नहीं पहुंच सकते, बिकॉज वो इजीली विजिबल होते हैं, तो उनके ऊपर प्रेडेटर के अटैक के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं. दैट्स वाई ये जो ऑर्गेनिजम्स है, उसके जो ऑर्गेनिज्म एडल्टहुड तक पहुंचते हैं, उनके नंबर्स काफ़ी कम रहते हैं कंपेयर टू दी नंबर ऑफ दी एग सेल्स एंड स्पर्म सेल्स. एग्जाम्पल्स आर मोस्ट ऑफ द algae, fishes and amphibians. Now the second type, internal fertilization. Here the syngamy process occurs inside the body of an organism. So the egg is formed inside the body of female, where it fuses with the male gamete, and for that the male gamete is always motile. Motile that means जो move कर सकता है. तो जो मेल ऑर्गेनिज्म है वो फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मेल गैमेट डिस्चार्ज करेगा. तो ये जो मेल गैमेट है वो ट्रांसपोर्ट होके फीमेल गैमेट के पास एग सेल यानी कि स्पर्म्स जो होंगे वो एग तक ट्रांसपोर्ट करके पहुँचेंगे, और वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होगा. जैसे कि मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है. तो जो मेल गैमेट्स है वो ट्रांसफ़र होके फैलोपियन ट्यूब में एंट्री लेते हैं, और वहाँ पे वो जो एग होता है उसके साथ फ्यूज़ होते हैं. जो नंबर ऑफ द एग सेल्स होते हैं वो कंपेयर टू स्पर्म सेल्स काफ़ी कम रहते हैं. ओके. जैसे कि ह्यूमन बीइंग में एवरी मंथ दोनों ओवरी में से कोई एक ओवरी जो है वो एग देती है, उसमें एग प्रोड्यूस होता है.
ओके जबकि नंबर ऑफ द स्पर्म सेल्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज जब वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जब उनको एग के पास पहुंचना होता है, तब काफ़ी सारे स्पर्म सेल्स वेस्ट भी हो जाते हैं. सो नंबर ऑफ द स्पर्म सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बट ह्यूमन बींग की बात करूँ तो ओनली वन स्पर्म सेल इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन. Examples are reptiles, birds and mammals. Now here is a picture of the external versus internal fertilization. So first is about the fish. So look at here. Female fish releases the ova in the water, while the male releases the sperms into the water. And in this picture you can see that the sperm cells surrounds the eggs. Okay, and after that the fertilization processes occur. जब स्पर्म सेल एग सेल के अंदर फ्यूज़ हो जाएगा तब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगी. एंड in the second picture is about the internal fertilization. In this you can see that there is a fertilization between a cock and hen, into which a cock releases the sperm cells inside the body of the hen, and the fertilization is occurs inside the body of the hen. तो इसकी बॉडी में एग बन रहा है और फिर वो बॉडी के आउटसाइड रिलीज होगा. नाउ लुक एट हियर द थर्ड पिक्चर. इट इज़ an example of the external fertilization. These are the eggs of the frogs. Now the third and last event of the sexual reproduction, that is the post fertilization event. So events in the sexual reproduction after formation of the zygote are called post fertilization events. Look, ज़ाइगोट बनना वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है. उसके बाद ज़ाइगोट आगे सेल डिवाइड करेगा, सेल मल्टीपल सेल्स बनाएगा और उसमें से फिर न्यू ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनेगी. तो ये जो प्रोसेस है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है. सो यू ऑल नो दैट द ज़ाइगोट जो है वो डाइप्लॉइड सेल होता है, राइट. तो उसमें जो डिवीजन होता है, सो वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर दैट दी सम ऑर्गेनिजम्स हैव अ हैप्लॉन्टिक बॉडी. तो जिसमें सारे सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी डाइप्लॉन्टिक है उसमें डाइप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. अब जो ज़ाइगोट है, फंजाई, एल्गी, ये जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो ज़ाइगोट है वो अपने अराउंड एक थिक वॉल का फॉर्मेशन करता है. दिस वॉल इज़ रेजिस्टेंट टू द desiccation and damage. So we can say that this wall is protect the zygote into the unfavorable condition, and when it get the favorable condition, at that time it will germinate. So before the germination it undergoes in the period of the rest. Okay, now let's see कि हैप्लॉन्टिक प्लांट, डाइप्लॉन्टिक प्लांट और हैप्लोडाइप्लॉन्टिक प्लांट, ये प्लांट की जो लाइफ साइकिल्स आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी. तो ये जो इस टाइप के प्लांट्स है उसमें ज़ाइगोट में सबसे पहला डिवीज़न कौन सा होता है. सो दिस इज़ अबाउट इट. सो लुक एट हियर into the first picture. It is about the हैप्लॉन्टिक प्लांट. सो जो प्लांट्स हैप्लॉन्टिक होते हैं जैसे कि वॉलवॉक्स, पायरोगायरा, क्लैमिडोमोनास, ये प्लांट्स में जो बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है. दैट मीन्स बॉडी के सारे सेल्स हैप्लॉइड होते हैं. ओके, तो और जो ज़ाइगोट होता है वो तो कैसा होता है, डाइप्लॉइड होता है, मतलब कि 2n होता है. सॉरी, जो ज़ाइगोट है वो क्या है, 2n है. और बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ओनली n हैप्लॉइड सेल्स होते हैं. सो दैट्स वाई ज़ाइगोट में फर्स्ट प्रोसेस जो होगी वो मियोसिस प्रोसेस होगी. कौन सी प्रोसेस होगी, मियोसिस प्रोसेस. मियोसिस प्रोसेस से जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और फिर ये हैप्लॉइड स्पोर्स आगे जाके माइटोसिस प्रोसेस करेंगे. तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, माइटोसिस प्रोसेस होगी. ये जो एरो है यहाँ पे जो प्रोसेस होगी वो माइटोसिस प्रोसेस होगी. और फिर उसमें से मेल फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस होगा, एंड गैमेट्स के बीच में सिंगैमी होके अगेन
जाइगोट बन के ये प्रोसेस रिपीट होगी। अगर हम डायप्लॉन्टिक प्लांट की बात करें तो उसमें जाइगोट सबसे पहले माइटोसिस प्रोसेस करेगा। क्यों? बिकॉज ये जो प्लांट है उनकी बॉडी डायप्लॉइड है और जाइगोट भी डायप्लॉइड है, तो ऑब्वियस है कि आफ्टर डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहने चाहिए। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कौन सी डिवीजन में सेम रहते हैं? माइटोटिक डिवीजन में सेम रहते हैं, राइट। सो दैट्स वाई लुक एट हियर कि यहाँ पे जाइगोट भी 2n है एंड स्पोरोफाइट भी 2n है। तो यहाँ पे प्रोसेस कौन सी होगी? फर्स्ट डिवीजन कौन सा होगा? दैट इज़ दी माइटोसिस। ओके, और उसके बाद गैमेटोजेनेसिस के लिए मियोसिस प्रोसेस और फिर गैमेट फ्यूजन एंड देन अगेन साइकिल रिपीट्स। अब हैप्लोडाइप्लॉन्टिक की बात करें तो हैप्लोडाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोट जो होता है वो सबसे पहले माइटोसिस प्रोसेस करके स्पोरोफाइट बनाएगा। सो लुक एट हियर, ये जाइगोट ने क्या बना दिया? स्पोरोफाइट बना दिया। सो दोनों 2n है, यहाँ पे भी 2n है, यहाँ पे भी 2n है, यानी डायप्लॉइड में से डायप्लॉइड सेल्स जनरेट हुए हैं। उसके बाद वो मियोसिस प्रोसेस करेगा तो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये स्पोर्स जो है वो आगे डेवलप होंगे मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट में। कुछ स्पोर्स मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होंगे तो कुछ स्पोर्स फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होंगे, ठीक है। और उसके बाद गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होगी। फीमेल गैमेटोफाइट में से फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे और मेल गैमेटोफाइट में से मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। एंड देन सिंगेमी प्रोसेस, जाइगोट फॉर्मेशन एंड अगेन रिपीट्स। सो यहाँ पे आपको जो है वो होल प्रोसेस तो नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ जो पहला डिवीजन कौन सा हो रहा है उसके बारे में लिखना है। सो रिमेंबर वन थिंग, ओनली इन हैप्लॉन्टिक प्लांट द फर्स्ट डिवीजन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट इज मियोसिस, and in remaining two, that means in diplontic plant and in haplodiplontic plant like bryophytes and pteridophytes and gymnosperm and angiosperm, zygote undergoes into the mitosis in first division. Now let's see the embryogenesis process. Okay, so these are the steps involved into the embryogenesis process. Now what do you mean by embryogenesis? That means a development of the zygote for the formation of the new organism. So first of all, the cell division is occurs into the zygote. This cell division it results into the formation of the cluster of the cells. These all cells are same in size and in appearance. Then after, these cells undergoes into the cell differentiation and forms the tissues. The tissues forms the organs and from the organs the body of the organisms is formed. So this whole process, this whole journey from the zygote to the formation of the organism is known as the embryogenesis process. So these are now this slide is about the type of the एनिमल्स। ओके, तो यहाँ पे डेवलपमेंट के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप्स में डिस्टिंग्विश करते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओके, सो ओविपेरस एनिमल्स आर दोज हु लेज द एग्स। ओके, जो एग्स ले आउट करते हैं, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस एनिमल्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि टॉर्टाइज है, हैन है, स्नेक्स है, बर्ड्स है जो एग्स ले आउट करते हैं, वो सारे कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? वो सारे ओविपेरस ऑर्गेनिज्म हैं क्योंकि वो एग्स ले आउट करते हैं। ओके, एंड जो डायरेक्ट यंग वंस का बर्थ करवाते हैं वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको विविपेरस बोलते हैं। ओके, तो जो ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो एक्सटर्नल होता है और जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म है उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो इंटरनल होता है। डोंट कंफ्यूज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो डिफरेंट थिंग है एंड डेवलपमेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल वो भी डिफरेंट थिंग है। मतलब कि जो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म है
वो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म ने एग लेआउट किया, तो वो एग में क्या है, स्पर्म सेल एंड एग सेल का फ्यूजन है, मतलब वो एग में जाइगोट प्रेजेंट है, राइट। अब ये जाइगोट में से न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो कहाँ बनेगा, बॉडी के आउटसाइड बनेगा, मतलब ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस हुई वो कहाँ हुई, बॉडी के बाहर की साइड, दैट्स वाई वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट हुआ। और अगर मैं दूसरा एग्जांपल ह्यूमन बींग को लेके बात करूँ, तो उसमें जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, वो फीमेल की बॉडी के अंदर बनता है, दैट्स वाई हम उसको क्या बोल सकते हैं, इंटरनल डेवलपमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि वो बॉडी के अंदर की साइड हुआ है, दैट्स वाई। अब अगर बॉडी के आउटसाइड डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियस है इट नीड्स द प्रोटेक्शन। फॉर द प्रोटेक्शन इन ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स the eggs have a hard calcareous cells, ओके, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में उनका प्रोटेक्शन हो जाए और वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको सेफ प्लेस पे एग्स ले आउट करते हैं और फिर उसमें से यंग वंस आफ्टर द इंक्यूबेशन ऑफ द पीरियड हैच आउट होते हैं। अब विविपेरस ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन जो होते हैं वो उसकी वजह से उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज जो यंग वंस होते हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर उनका डेवलपमेंट होता है, दैट्स वाई उनके सर्वाइवल के चांसेस ऑलवेज ओविपेरस से ग्रेटर रहते हैं। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात करें तो जाइगोट जो होता है वो ओव्यूल के अंदर फॉर्मेशन होता है उसका। अब यहाँ पे आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन के चेंजेस शो किए हैं। तो फर्स्ट चेंज ये है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है सेपल्स, पेटल्स एंड जो स्टेमेंस होते हैं वो विथर हो जाते हैं एंड फॉल ऑफ हो जाते हैं। ओके, सो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमेंस ऑफ द फ्लावर्स विथर एंड फॉल ऑफ, बिकॉज अब उसकी नीड नहीं होती है। देन आफ्टर द जाइगोट इट अंडरगोज इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। फ्रॉम द ओव्यूल सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, from the ovary fruit is produced, and the thick wall of fruit it is known as a pericarp. So the wall of the ovary it forms the pericarp. Okay, so these are the changes of the post fertilization events. Okay, so first chapter यहाँ पे complete होता है. I hope you liked it. Thank you.